السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو ریئیکشن ویڈیو. اور ابھی جس ویڈیو کے اوپر ہم لوگ ریئیکٹ کرنے والے ہیں گورب بھیا کی ویڈیو ہے. انفارمیشن بہت ساری ہمیں اس ویڈیو کے اندر ملنے والی ہمارے ہے. بھیا کب بنے ہو؟ مطلب گورب بھیا میں اس لیے کہتا ہوں نا، یہ بندہ نا یار بہت جینوئن بات کر رہا ہے. مطلب بہت ریسرچ ہوتی ہے اس کی بات کے پیچھے. ہو سکتا ہے چلو کہیں آؤٹ نہ آف کہیں ریسپیکٹ تم کو بھیا بولتے ہو. تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائی سعودی عربیہ گوئنگ اگینسٹ اسلام. انٹرسٹنگ ٹائٹل لگ رہا ہے. تو سعودی عربیہ کیوں اگینسٹ ہوگا اسلام کے؟ یار ایسا وہ نہیں ہو کیونکہ اب سکتا. آہستہ آہستہ نا لبرل ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب. اس ریئل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور نور کی چینل کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ لوگوں نے لازمی جا کر وہاں پر بھی سبسکرائب کرنا ہے. آپ ڈیلی روٹین سے وہاں پر بھی آپ لوگوں کو نور کی ریئیکشنز ملتے رہیں گے. اور لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ اب ایک سیکولر کنٹری بن چکی ہے. وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تو اپنا ریلیجیس اٹائر چھوڑ کے کچھ ایسے ماڈرن کپڑے پہننا شروع کر دیا، وہ بھی اپنے آفیشیل میٹنگز میں. بٹ بات صرف کپڑوں کی نہیں ہے. سعودی پریس نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے زمین پر ریلیجیس موسٹلی ایسے عربی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سے گنجا ہوتا ہے، کبھی سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے یہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ایکسٹریمزم کو پناہ نہیں دیں گے، اور ریڈیکل ٹیررزم اگر اس وقت ان کے زمین پر چل بھی رہی ہے تو وہ آج اور ابھی ڈسٹروائے کر دیں گے. اور وہ اس معاملے میں اتنے سیریس ہے کہ انہوں نے پورے سعودی میں 600 سے بھی زیادہ ریلیجیس پلیسز کو ڈیمولش کر دیا، اور 10 سے بھی زیادہ ایکسٹریمزم پھیلانے والے ریلیجیس لیڈرز کو ترنت ایگزیکیوٹ کروا دیا راتوں رات. سعودی اتنا سیکولر ہو چکا ہے اچھا ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی آئیڈیا نہیں. حجاب تک بین کر دیا. اینڈ ناٹ سو لانگ اگو ویمنس رائٹ کو سپریس کرنے والا سعودی آج ویمنس ورلڈ کپ کو سپانسر کر رہا ہے. ویل ہیلو فرینڈس، میرا نام ہے گورو ٹھاکر، اور سعودی کے اس انکریڈیبل چینجز کے پیچھے ہاتھ ہے محمد بن سلمان کا، جنہوں نے آتے ہی سعودی کی عورتوں کے پرتی لاز میں کافی سارے چینجز لا دیے. سب سے پہلے تو ویمن ڈرائیونگ کو پورے سعودی میں لیگل کروا دیا. دوسرا اور سب سے میجر چینج، انہوں نے سعودی میں ویمن امپاورمنٹ کو اس حد تک انکریز کیا کہ آج کے تاریخ میں ویمن امپلائمنٹ کا ریٹ 68% سے بڑھ چکا ہے، وہ بھی صرف 2 سالوں کے اندر. بٹ جو دیش ایک سمے پر اسلام کا ایپی سینٹر ہوا کرتا تھا، وہ اپنے کنزرویٹو سوچ کو اتنے تیزی سے ایک لبرل ڈیموکریٹک سوچ میں کیسے چینج کر پائے؟ سو بات کچھ ایسی ہے فرینڈز کہ سال 2017 میں سعودی نے ایک سیکولر اسٹیٹ بننے کے لیے اپنی نئی پالیسی ماڈریٹ اسلام ویژن 2030 اپنے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے جو سعودی عربیہ جیسا ریڈیکل اسٹیٹ کبھی نہیں کر سکتا تھا. سو سعودی نے 4 میجر سٹیپس لیے، جس میں سب سے پہلا اس نے وہاں کے ریلیجیس لیڈر شیخ سلمان الاودھا، اود القرنی اور علی العماری کو ایگزیکیوٹ کروا دیا، کیونکہ ان کے مطابق وہ دھرم کے نام پر ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے تھے. اور وہیں پر دوسرے سٹیپ کے اور انہوں نے اپنے پالیسی کے تحت سعودی کے مسجدوں سے سارے لاؤڈ سپیکرز کو ہی ہٹا دیا. سو ہم انڈیا میں بات کرتے ہیں، اس چیز پہ واد وواد ہوتا ہے، بٹ سعودی عربیہ یہ ڈیسیژن خود لے چکا ہے. اب تیسرا اور سب سے میجر سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے سیدھے مسجدوں کے اندر کی براڈ کاسٹنگ کو ہی بین کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ سعودی کے ریلیجیس آئیڈیالوجی یا میسج باہر سرکولیٹ نہیں ہوگی. اور چوتھا میجر سٹیپ یہ تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے مسجدوں کو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ ٹک ٹاک بنا رہے تھے وہاں جا کے. ہاں، اور دوسرا یہ کہ ڈس ریسپیکٹنگ تھا بہت زیادہ. ڈس ریسپیکٹنگ بھی. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اکثر اگر کچھ لائیو چل بھی رہا ہے نا، تو اگر کسی کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل بھی جاتے ہیں، کچھ ایسی چیز نکل بھی جاتی ہے، وہ وائرل نہ ہو جائے یا کچھ اس طریقے سے. ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، کچھ گالیاں دی گئی لیڈرز وغیرہ سے ریلیٹڈ قسم کی ڈس ریسپیکٹ، ڈونیشنز لینے سے اسٹرکٹلی پروہیبٹ کر دیا. اب یہ سب سٹیپس تو لیے ہی، لیکن حال ہی میں وہابزم اسلام جو سعودی کی بیسک آئیڈیالوجی تھی، اسے بھی سعودی نے پروموٹ کرنا بند کر دیا، جسے وہ ایک ٹائم پر بھرپور پروموٹ کیا کرتا تھا. اور ان فیکٹ انہوں نے تو اب ان وہابزم ہیریٹیج سائٹس کو کسی بھی ریلیجن کے ٹورسٹ کے لیے اوپن کر دیا ہے. ٹورزم کو لے کر تو وہ اتنے سیریس ہو گئے ہیں کہ اگر سٹی کے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کے بیچ کوئی مسجد آئے تو سعودی گورنمنٹ سیدھا ان مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کی پرمیشن دے دے گی، which is truly unbelievable, but yes, اسلام بھی کہتا ہے. سعودی گورنمنٹ نے یہاں تک وہاں کے 3 سب سے اولڈسٹ اور پرومیننٹ مسجدوں کو ڈسٹروائے کروا دیا ہے، جس میں سے ایک تو پروفٹ کی وائف خادیجہ کا مقبرہ تھا. لیکن سعودی یہاں پر بھی نہیں رکا، اس نے صرف اسے توڑا ہی نہیں بلکہ اس جگہ کو توڑ کر ٹوائلٹ میں تبدیل کر دیا. مائنڈ بلوئنگ رائٹ کہ سعودی ایسے بھی ڈیسیژنز لے سکتا ہے. اس ٹورزم پروجیکٹ کے تحت سعودی نے آج 1000 سے بھی زیادہ اسلامک کلچرل سائٹس پر بلڈوزرز چلائے ہیں، جس پر وہ اب شاپنگ سینٹرز، اسکائی اسکریپرز اور لگژری ہوٹلز بنا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے سعودی کے اسٹیپ سے کئی سارے اسلامک کنٹریز، ٹرکی اس سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سعودی نے ڈیولپمنٹ کو تھمنے نہیں. ترکی کی ناراضگی بیسیکلی تھوڑا سا اور بھی ریزن ہے، یہی ایک کارن نہیں ہے. ریسنٹلی سعودی فرانس کے ساتھ کئی سارے ڈیلز بھی سائن
करके अपने टाइज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सऊदी ने तो अपने यहाँ पर 1.5 लाख फ्रेंच स्पीकर्स और 500 टीचर्स को भी अपॉइंट कर दिया है। और वहीं पर जहां पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड फ्रांस को बहुत ज्यादा हेट करता था, क्योंकि आपको याद होगा हमने व्हाई यूट्यूब गॉट बैंड इन पाकिस्तान इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे साल 2005 में फ्रांस के कार्टूनिस्ट ने प्रॉफिट की पिक्चर बनाई थी जो कि इस्लाम में हराम है, बट ये इंसिडेंट इतना मेजर था कि इसके बाद हुए प्रोटेस्ट और रायोट्स ने 200 से भी ज्यादा फ्रेंच को मार दिया और मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट बिल्ड कर दिया। अब अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो फ्रांस और इस्लामिक कंट्रीज की ये एनमिटी कोई आज की नहीं है, ये शुरू हुई थी नेपोलियन के इजिप्ट के इन्वेजन के दौरान से। अब अगर देखा जाए तो नेपोलियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्करर्स में से था। अब उस वक्त के हालात कैसे थे और नेपोलियन ने कैसे इस एक्सपेंशन को अंजाम दिया, ये सब कुछ से कॉमन इंसान को भी बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। और ये सब अब वापस से लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। हम बात कर रहे थे कि क्यों सऊदी अपने धर्म को छोड़कर एक सेक्युलर देश बनना चाहता है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो इसे समझने के लिए ना हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो बात है 90s के दौर की, जब इस्लामिक लीडर बनने की रेस में 3 मेजर कंट्रीज के बीच जंग छिड़ी हुई थी, टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, जो सारे इस्लामिक कंट्रीज को अपना ब्रदरहुड और खुद को इस्लाम का फ्लैग बेरर दिखाकर अपने पॉलिटिकल ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। तो टर्की की अगर बात करें तो उसने ऑटोमन लेगेसी को बताकर खुद को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बताने की कोशिश की, और इसी को बेस बनाकर टर्की ने कई मुस्लिम कंट्रीज में मॉस्क्स बनवाए और उन मॉस्क में अपने इमाम्स को भेजकर कंट्रीज को अपने साइड लेने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा भी टर्की ने इन जैसे इस्लामिक यूरोपियन कंट्रीज में कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, और 90s के दशक में यूरोप के इस्लामोफोबिक मूवमेंट के खिलाफ भी टर्की ने स्ट्रांगली आवाज उठाई थी। उसने ये भी कहा था कि मुस्लिम्स आर द न्यू ज्यूज एंड ब्लैक्स इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ दूसरा कंटेंडर ईरान की अगर बात करें तो वो लीडर बनने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने खुद शिया मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी सुन्नी कंट्री जैसे रिपब्लिक ऑफ सर्बियन क्रजीना को तक सपोर्ट कर दिया। इतना ज्यादा सपोर्ट कि ईरान ने उनको वॉर लड़ने के लिए ट्रेनिंग, डायरेक्शन से लेकर आर्म्स तक सब कुछ प्रोवाइड किया। बट इन दोनों कंट्रीज, टर्की और ईरान के लाख कोशिशों के बाद भी सऊदी इस्लामिक हब और लीडर बनने में कामयाब हुआ। तो बात है 1970s की, जब यूरोप और यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया था, तब ओपेक कंट्रीज के थ्रू सऊदी ने इन जगहों पर ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर लिया था। अब इसमें सऊदी ने ऑयल प्राइसेस को मैनेज करते हुए यूएस और यूरोप पर एक डोमिनेटिंग पोजीशन हासिल कर ली थी, और इससे सऊदी की इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी, और यूएस और यूरोपियन रिलेशन से इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी की इमेज भी काफी बढ़ रही है। अब इस ऑयल इकोनॉमी से आए पैसे को सऊदी ने इस्लामिक कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन फैलाने में भरपूर यूज किया, जैसे बाल्कन वॉर में मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में फंडिंग को बढ़ाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सऊदी लगभग हर मुस्लिम नेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। अब इस पोजीशन को सऊदी ने और भी स्ट्रांगली मेंटेन किया जब उसने यूएस बैंड ऑर्गेनाइजेशन हरमैन फाउंडेशन को यूएस के विरोध के बाद भी फाइनेंस किया, जिससे अगेन उसका पोजीशन एज अ लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड रीइंस्टेट हो गया। लेकिन अब हाल ही की बात करें तो सऊदी के इस लीडरशिप को वापस से चुनौती दे रहा है टर्की। जैसे ही टर्की के प्रेसिडेंसी को रिसेप तय्यिप एर्दोगान ने हाथ में लिया, टर्की कैलिफेट की इस रेस में वापस से शामिल हो गया। तो एर्दोगान ने अपने पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्तफा केमाल अतातुर्क के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को धीरे धीरे एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में कन्वर्ट कर दिया, और हर पॉसिबल मूव लिया जिसमें टर्की इस्लाम का फ्लैग बेरर बन सके, जैसे हिजाब को लेकर इस सपोर्टिंग वोट को ही ले लो। और सिर्फ वोट ही नहीं, एक बार तो एर्दोगान ने ये क्लियरली कह दिया कि वही खुद कैलिफ बनेगा। और हाल ही में एर्दोगान ने सऊदी के अगेंस्ट एक बड़े इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बनाया, जिसे हम कुआलालंपुर 2019 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में देख ही सकते हैं। इस ग्रुप में पाकिस्तान, ईरान और कतर टर्की के साथ है, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सऊदी को ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट तक नहीं किया। अब ये सऊदी के लिए एक मेजर सेटबैक था। अब सऊदी अरेबिया में इस्लाम को साइडलाइन करने की एक वजह सो 9/11 अटैक्स में सऊदी ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर इन्वॉल्वमेंट था, और इसीलिए उसे इस अटैक का जिम्मेदार भी माना जाता है। और इसीलिए इस दाग को वॉश करने के लिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उसने डेमोक्रेटिक और सेक्युलर साइड चुना, क्योंकि वो आज के टाइम के हिसाब से वेस्टर्न पावर से बेर लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पर इसमें टर्की और वेस्टर्न एंगल के अलावा भी
एक सबसे मेजर साइड है ग्लोबली चेंजिंग ऑयल इकोनॉमी का, जिसपे सऊदी पूरा का पूरा डिपेंडेंट था और जो समय के साथ साथ डिक्लाइन अब पर उस पे जाते रह भी नहीं सकते सो ना। फैक्ट की बात ये है ना फ्रेंड्स कि कोविड के बाद ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और स्पेशली सऊदी के ऑयल प्राइसेस सीधे 25% से नीचे गिर चुके हैं। अब इस डाउनफॉल से सऊदी इकोनॉमी इस हद तक इंपैक्ट हुई है कि सऊदी को पहली बार अपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कही जाने वाली सऊदी अरामको के 25 बिलियन डॉलर्स वर्थ के शेयर्स तक बेचने पड़े। गवर्नमेंट को भी देश में पहली बार वैट सीधा 3 गुना बढ़ाना पड़ा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सऊदी के ऑयल के खोज के वक्त वहां पर सिर्फ 20 लाख लोग थे, जो आज अराउंड 2.4 करोड़ यानी 10 गुना बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट उनकी ऑयल इकोनॉमी पर हुआ है और पैंडेमिक सिचुएशन में उसका सरवाइव करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इन सारी मुसीबतों के बीच रशिया और यूक्रेन के वॉर क्राइसिस ने सऊदी को एक बार फिर से ऑयल इकोनॉमी पर डिपेंडेंसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, बिकॉज वॉर के सिचुएशन ने सऊदी ऑयल प्राइसेस को $33 पर बैरल से सीधा $11 पर बैरल गिरा दिया। वहीं पर चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर बड़े ही स्मार्टली खेलते हुए इन सभी कंट्रीज को अपनी ओर लाने के लिए सस्ते में ऑयल सेल करना शुरू कर दिया। अब फैक्ट अगर देखें ना तो सऊदी ये बात समझ चुका है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा दिनों तक ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती और इसीलिए सऊदी अपने ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी को कम करके टूरिज्म की तरफ अपनी रुख मोड़ रहा है। और क्योंकि वो टूरिज्म सेक्टर में तो टर्न ऑन हो ही रहा है, तो वो टूरिस्ट पर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकता है? अगर सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान के माइंडसेट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इनको सऊदी अब अपने changings तो करनी कंजर्वेटिव पड़ेंगी अगर पास्ट लोगों से को बाहर लाना आना चाहता है और वो वेस्ट से दोस्ती के साथ साथ इंडिया और चाइना जैसे पावरफुल कंट्री से भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं सऊदी ये समझ रहा है कि ऑयल की जो वेल्थ थी वो एक ना एक पॉइंट में खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, तो उन्हें कुछ ना कुछ पैसे कमाने का, इकोनॉमी चलाने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, जैसे यूएई ने ढूंढा था। बट यही बात दूसरे एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज जैसे पाकिस्तान अभी तक नहीं समझे और वो भी अपने कंजर्वेटिव एरा पर ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, कि पाकिस्तान के डिक्लाइन में एक और एक एंगल है। अगर 2016 में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता तो शायद आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं हुई होती। एंड यस, आई कैन प्रूव यू हाउ। इनफैक्ट इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। और यार इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी मुझे पता थी, जिस तरीके से तुम बात कर रही थी वो उसकी कि ये दुबई की तरह का ना, मतलब अपनी चेंजिंग करना एक विजन चाह बना रहा रहा है है। और वही जैसे आप वो स्काई tallest buildings स्क्रैपर्स, बनाना बिल्डिंग्स चाह और उस रहा है, तरह malls की। बना रहा है। हाँ। इवन कि आप सऊदीया में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बल्कि हम ये जिसमें अभी एक- कैथी का भी हुआ था पिछले दिनों। एक क्रिटिसिज्म आया था कि लाइक पीछे जो था वो सऊदीया का फ्लैग था जिस पे कलमा लिखा होता है और हाँ। आगे वो डांस परफॉर्मेंसेस और गाने बज रहे थे, जिसपे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया था सऊदीया के लिए। और ये इस तरह के और भी लाइक इवन के बॉलीवुड एक्टर्स अब सऊदीया जा रहे हैं और उनके शोज हो रहे हैं वहां पे, तो ये एक ये different सेम चीज वही है। वाला दुबई वाला सीन हो रहा है हाँ, ना, दुबई कि बनाना चाह उसी रहे हैं तरीके से, क्योंकि क्योंकि सऊदीया को पता है वो अपने ऑयल की इकोनॉमी ऑयल पे पे ज्यादातर डिपेंडेंट नहीं नहीं टिक हो सकता। सकता। हाँ, सऊदीया अभी भी जो है रिलीजियस जो टूरिज्म है ना उससे बहुत ज्यादा कमा रहा है, ऑलरेडी जो उससे। उम्रा और हज होता है। अच्छा, यही चीज ये मैं भी उससे कहने बहुत लगा था ज्यादा कि कमा रहा है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका सऊदीया के साथ बेसिकली कनेक्शन एक ये कनेक्शन भी इसी है, वजह से है। इसी वजह से है। Sacred और places है हाँ, हमारी वहाँ पे। क्योंकि वहां पर हमें जाना पड़ता है, लेकिन अभी एक वो और चीज भी है परफॉर्मेंस ना वगैरह कि कर 2024 में जो एक टर्की और सऊदीया का एग्रीमेंट है Agreement खत्म खाना हो रहा काबा है। की चाबी को लेके, हाँ जी। तो जो टर्की ने सऊदीया को दे दी थी कंट्रोल करने के लिए, जब ऑटोमन एम्पायर टूट गया था टूट बेसिकली, गया था। तो अब और वो ये 100 अगले साल साल की 100 साल की वो कुछ थी 100 साल इसमें। की थी, वो खत्म होने वाला हाँ, है। वो और अब खत्म होने वाला देखते हैं अगले साल ये अगले इंटरेस्टिंग साल होगा में क्योंकि क्या टर्की होगा। और सऊदीया की वैसे ही नहीं बनती। हाँ, तो अब मुस्लिम वर्ल्ड वैसे भी सऊदीया को उस नजर से नहीं देखती, क्योंकि यार जिस ये वही नजर बात से, हाँ, होगी तुर्की को देखते। शरीयत वाले पुलते ला के सोना मई लिबरल हो गया। हाँ। खैर, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी Interesting थी। और एक और वीडियो के साथ हम लोग दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।